So today we will study about logic gates. Logic gates are of different types. We have primarily OR gate, AND gate and NOT gate. Okay. Other gates can be produced by this combination of OR, AND and NOT gate. Then we will study about PN junction. PN junction as a rectifier and Zener diode, LED and transistor. Okay. So what are logic gates? Logic gates are the digital circuits. Logic gates are the digital circuits. So in digital circuits like in computer, okay, or in mobiles, you have very minor, very small chips in your electronic circuits. So logic gates, what it does, it manipulates the signal. Okay, it manipulates the combination. Suppose if it is pressed, then it should be on. Okay, if both the signal comes strong, if both the signals are high, then the output should be high. Okay, if any one of them, any one signal is high, then the output should be high. Okay, or if unless both the signals are high, the output should not be high voltage. Okay, so this type of logic, if we want to develop, then we need certain circuits. So logic gates are actually digital circuits. Okay, why we require such logic gates? Logic gates we use to convert our logics and to get the desired आउटपुट. हम लोग का जो लॉजिक है, जो हम लोग सोचते हैं कि इस तरह से मेरा ये काम करना चाहिए. ओके, सो लॉजिक गेट्स गिव्स दिस, लॉजिक गेट्स गिव दिस ऑप्शन फॉर अस टू क्रिएट द आउटपुट एज पर आवर रिक्वायरमेंट. सो देयर आर वेरियस कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स दैट वी कैन प्रोड्यूस. अच्छा, now let us see one by one. See, what is OR gate? OR gate means what? Suppose OR gate, okay, OR gate combines both the signals. If suppose what is OR gate? If we take this circuit diagram, in circuit diagram OR gate is represented by this. So these are the input signal A, B, and this is the output signal. Output signal is A plus B. Okay, this is how the OR gate is represented. Now what it does actually? What is this? This gate can be prepared by PN junction, but this can be done by with the help of transistors. So we use transistors. We will read about it. Transistor logic. So various electronic equipments, electronic devices we can use to make this OR gate. Now for the time being, let us say, suppose मेरे पास दो सिग्नल है A और B. इस गेट का काम क्या है? ये मुझे सिग्नल को ऐड करके दे देगा, A plus B कर देगा. ओके, नाउ A का क्या क्या वैल्यू हो सकता है? ये हाई मीन्स व्हाट? ट्रू मीन्स व्हाट? 1. ओके, ये सिग्नल है. These are the signals. A and B are the signals. Okay, and output is also a signal. So if we write the expression, we call it for various values of A and B, what will be the output? A और B का various value हो सकता है. Binary में क्या हो सकता है? 1 and 0. Okay, so for various values of A and B, what are the values of Y? Possible values of Y. Let us write these are input. Okay, what are the inputs? A and B. And what is output? Y. Y is what? A plus B. Now what are the possible values of input? A can be 1, 1, 1, 0, 0. Okay, B can be 1, 0, 1, 0. See, 4 possible combinations are. There are 4 possible combinations in this case. 1, 1, 1, 0, 0, 1 and 0, 0. With 2 input
only we can get 4 combination. ठीक है, अभी ये क्या है 1 plus 1 1, मतलब ये भी 1 है ये भी 1 है, तो आउटपुट क्या होगा 1 plus 1 is 1. हाई हाई दोनों अगर हाई सिग्नल रहेगा तो आउटपुट क्या होगा हाई होगा, दोनों ट्रू रहेगा, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तो आउटपुट क्या होगा ट्रू रहेगा. ओके, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे एक इलेक्ट्रिकल एनालॉग सर्किट्स के थ्रू कि ये किस तरह से काम करता है. ओके, नाउ लेट अस सी 1 0, A is 1 B is 0, then output will be what? Output will be 1. 1 plus 0 is 1. A is 0 B is 1. Okay, so then output will be 1 and both are 0, then output will be 0. ये जो कॉम्बिनेशंस है फॉर वेरियस इनपुट सिग्नल व्हाट विल बी द आउटपुट, इसको हम क्या बोलते हैं ट्रूथ टेबल. दिस इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल, ठीक है. नाउ ट्रूथ टेबल का अगर मुझे OR गेट का एक इलेक्ट्रिकल एनालॉग दिखाना है कि दोनों में से कोई भी अगर ऑन रहेगा तो आउटपुट में 1 रहेगा, दोनों ऑन रहेगा तो भी ऑन रहेगा. ओके, लेट अस सी दिस. सपोज मेरा एक इस तरह का एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में लेता हूं OR गेट को समझाने के लिए. ओके, अभी मेरे पास 2 स्विच है. These are the 2 switch और यहाँ पर मेरा एक बल्ब है, ये बल्ब है. ओके, ठीक है. इसको मैं इस स्विच का नाम दिया A, इस स्विच का नाम दिया B. ये बैटरी है. ओके, अभी मान लो A और B दोनों ऑन है. ठीक है, तो क्या होगा ये सर्किट से करंट फ्लो करेगा और बल्ब क्या होगा, दिस बल्ब विल ग्लो. Means when A and B both are on, then the output will give the signal on रहेगा. Okay. Now if one is on, A is on, suppose A को मैंने on कर दिया and B is out of circuit, तो करंट किस तरह से फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, then also this bulb will glow. Correct. अच्छा, अगर A को खुला रखा और B को ऑन कर दिया, A is 0 and B is on, B is 1, उस केस में क्या होगा सर्किट इस तरह से फॉलो होगा और अभी भी बल्ब जलेगा. अच्छा, लास्ट कॉम्बिनेशन बोथ आर ऑफ, बोथ आर लो, बोथ आर 0, बोथ आर ओपन, यानी इससे ओपन सर्किट करंट नहीं फ्लो होगा, तो उस केस में क्या होगा बल्ब ग्लो करेगा नहीं करेगा, सो बल्ब विल नॉट ग्लो. सो व्हेन 2 keys आर इन पैरेलल, ठीक है, तो लॉजिक हमारा किस तरह का बैठ रहा, दिस लॉजिक रिसेंबल्स टू दिस, ये लॉजिक हमको OR गेट के जैसा बनता है. ओके, सो दिस इज व्हाट इज OR गेट. नाउ लेट अस से व्हाट इज AND गेट. नाउ AND गेट डिजिटल सर्किट में हम लोग AND गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह का सिंबल यूज होता है. AND गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस और इसका एक्सप्रेशन क्या है A into B. ठीक है, so this is now we are studying AND gate. Okay, अच्छा, वो आउटपुट इज A into B. A into B में क्या होगा 1 into 1 is 1. Okay, 1 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 0 into 0 is 0. तो AND गेट क्या करेगा, जब दोनों ऑन रहेगा तभी आउटपुट में ऑन मिलेगा, ट्रू मिलेगा, हाई मिलेगा. ओके, अगर इनमें से एक भी अगर या दोनों अगर ऑफ रहेगा, एक ऑफ रहेगा या दोनों ऑफ रहेगा, तो आउटपुट में मुझे सिग्नल लो मिलेगा, आउटपुट विल बी 0. सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट AND गेट थ्रू इलेक्ट्रिकल एनालॉग सर्किट. ओके, सपोज मैंने दोनों की को अगर सीरीज में रखा, सपोज एक की यह है एक की ये है, सो ये मेरा A है ये B है. ठीक है, दोनों अगर ऑन है, A को टैप किया B को भी टैप किया, तो क्या होगा सर्किट में करंट फ्लो करेगा एंड वंस द करंट फ्लोज दिस बल्ब विल ग्लो. करेक्ट.
So 1 is 1 means high is, this will give the high voltage. Okay. Then 1 0 means A on है but B off है, तो इसमें सर्किट ब्रेक है, तो bulb will not glow now. So if one of the input signal is on, other is off, then the output is off. Correct? So this is now, अभी A को मैंने ऑफ किया और B को ऑन किया, तो क्या होगा? अगेन सर्किट ब्रेक है, करंट, ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, bulb will not glow, and if both are off, then also this bulb will not glow. ठीक है? सो अगर मैं दो की को सीरीज में रखता हूं तो इट रिसेंबल्स टू एंड ऑपरेशन. करेक्ट? क्लियर? ओके. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, ये दोनों हो गया अभी. लेट अस अंडरस्टैंड नॉट गेट. अच्छा, और गेट एंड गेट में मोर देन वन इनपुट ले रहा था मेरा, ठीक है, सर्किट. नॉट गेट में क्या होता है कि इट टेक्स ओनली वन इनपुट. ओके, वी आर स्टडीइंग नाउ नॉट गेट. नॉट मतलब नेगेशन. ये क्या करेगा? इनपुट सिग्नल को रिवर्स कर देगा. इट ओनली नेगेट्स द इनपुट सिग्नल. कैसे? सो इसमें इनपुट 1 होता, नॉट गेट को सर्किट में इस तरह से डिनोट किया जाता है. ओके, वी डिनोट नॉट गेट बाय दिस सिंबल. तो इसमें मेरा इनपुट एक ही रहेगा, आउटपुट क्या होगा? नेगेशन ऑफ ए नॉट, रिवर्स करेगा. तो ये बी नहीं रहेगा अभी मेरा, तो एक का तो दो ही पॉसिबल वैल्यूज है, या तो 1 होगा या 0 होगा. ठीक है. अच्छा, अगर मेरा ए 1 है तो इसका उल्टा क्या होगा? बाइनरी में 1 का 0 हो जाएगा, तो आउटपुट विल बी 0. इफ इट इज 1 then output is 0. if it is 0 then output will be 1. ये है नॉट गेट. नॉट गेट क्या करेगा? जस्ट इनपुट सिग्नल को रिवर्स कर देगा. हाई है तो लो में कन्वर्ट करेगा, लो है तो हाई में कन्वर्ट करेगा. ओके. अच्छा, इसका मतलब है नॉट गेट क्या करता है? अगर ऑन है तो आउटपुट नहीं मिलेगा. तो मैं एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल का, लेट अस ट्राई टू एनालाइज दिस. सपोज मेरा इस टाइप का एक सर्किट है और यहाँ पर एक मेरा टैपिंग की है, इस टाइप का. ये मेरा ए है, ठीक है. ऑफ है मतलब खुला हुआ है, ऑन है मतलब टैप किया हुआ है. तो अगर मेरा ऑन है, अगर ये ऑन है तो क्या होगा? ये शॉर्ट सर्किट हो गया. करंट कौन सा रास्ता फॉलो करता है? लीस्ट रेजिस्टेंस वाला सर्किट फॉलो करता है. सो करंट विल गो थ्रू दिस ओनली, दिस बल्ब विल नॉट ग्लो. ठीक है. तो अगर ये ऑन है, ये अगर 1 है, ये अगर हाई है, ये अगर ट्रू है, तो मेरा बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब का आउटपुट 0 होगा. ओके. अच्छा, नाउ इफ इट इज ऑफ, तो इधर सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा. करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? इस डायरेक्शन में, एंड द बल्ब विल ग्लो. तो मेरा ऑफ होने से आउटपुट में सिग्नल मिलेगा, विल गेट आउटपुट, अदरवाइज विल नॉट गेट. सो नॉट गेट का हम पैरेलल में एक स्विच लगा दिए. तो इसका जो लॉजिक है, इस टाइप का सर्किट का जो लॉजिक है, ये बिल्कुल फिट हो रहा है नॉट गेट के साथ. ठीक है, नॉट गेट. So now let us understand what is NOR gate. NOR gate, okay? You understand what is NOR gate? NOR gate कुछ नहीं है, it is OR gate का ही negation है. मतलब NOR gate में भी more than one input हो सकता है. NOR gate, OR gate कैसे डिनोट किया जाता है? ऐसे, ठीक है. उसमें नॉट, N मतलब negation. तो इसमें एक नॉट लगा दो, 0 लगा दो. तो ये मेरा, this is how NOR gate is represented in the circuit. तो ये मेरा A B है, 2 इनपुट है. आउटपुट क्या होगा? Y इक्वल टू A प्लस B, जो भी हो रहा है, और का काम ऐड करना, इसका नेगेशन कर देगा, इसको रिवर्स कर देगा. ओके. सो लेट अस सी. वन 0 0. ओके, 4 पॉसिबल, 1 0 1 0. तो आउटपुट क्या मिलने वाला है? देखो, आउटपुट इज A प्लस B का
negation, a plus b का reverse, not, okay. So a plus b equal to कितना होगा 1, 1 का negation मतलब 0, 1 plus 0 is 1, उसका negation 0, 0 plus 1 is 1, 1 का negation 0, 0 plus 0 is 0, उसका negation 1. तो NOR गेट क्या कर रहा है, जब दोनों ऑफ है तभी मुझे आउटपुट मिल रहा. इस टाइप का भी लॉजिक हमको, कॉम्बिनेशन लॉजिक इस टाइप का भी चाहिए कि जब दोनों ऑफ है तो ही मुझे आउटपुट मिले, और इनमें से अगर कोई भी ऑन है तो आउटपुट नहीं मिलना चाहिए. करेक्ट. अच्छा, नॉर गेट को हम किस तरह से एनालॉग सिग्नल में कैसे ऑफ दिखा सकते हैं. ओके, इफ बोथ आर ऑफ देन ओनली विल गेट आउटपुट. ओके ओके. तो सपोज मेरा इस टाइप का है, both are off, then we should get the output. ठीक है. चलो ये both are on then 0, if one of them is off then also okay. एक ये है और एक ये है, ये दो पैरेलल में रखो, दो पैरेलल में रखो. ठीक है. ये A है, ये B है. अभी देखते हैं ये नॉर गेट का काम करेगा या नहीं करेगा. कैसे, मान लो कि A को ऑन किया, ठीक है, तो आउटपुट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इसको मैं ऑन कर दिया तो क्या होगा, करंट इस तरह से फ्लो होकर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. इस सर्किट में मेरा बल्ब नहीं जाएगा. ओके, बल्ब इधर है, बल्ब को मैं इधर लगाता हूँ. चलो ठीक है. तो A अगर ऑन है, B अगर ऑन है, दोनों अगर ऑन है तो भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आउटपुट विल बी 0. अच्छा, इसमें से अगर A ऑन है एंड B ऑफ है तो भी मेरा ये सर्किट कंप्लीट होगा, बल्ब नहीं जलेगा. अगर ये ऑफ है एंड ये ऑन है तो भी इस टाइप से सर्किट कंप्लीट होगा, आगे करंट नहीं जाएगा. और दोनों अगर खुला हुआ है तो देन क्या होगा, इस तरफ देयर इज नो पाथ, करंट के लिए ये पाथ नहीं बन रहा, तो करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा एंड बल्ब विल ग्लो. सो इन नॉर गेट वी आर गेटिंग आउटपुट ओनली व्हेन बोथ आर ऑफ. ठीक है. अच्छा, नाउ ये नॉर गेट हो गया. नाउ विल स्टडी अबाउट नैंड गेट. अच्छा, नैंड गेट क्या है, एंड गेट का नॉट ऑपरेशन. So we are studying now NAND, negation of AND gate. ठीक है. How it is represented, NAND gate कैसे, NAND gate is AND का NOT. ठीक है. तो सर्किट में AND गेट इस तरह से डिनोट किया जाता है, इसमें एक नॉट लगा दो, तो दिस इज हाउ वी गेट NAND गेट. AND क्या करता है, आउटपुट में A into B करता है. ठीक है. NAND क्या करेगा, इसको निगेट कर देगा. ठीक है. सो हाउ विल बी द आउटपुट, आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या है, A into B का नेगेशन. करेक्ट. सो लेट अस सी NAND गेट का आउटपुट कैसे होगा. इफ बोथ आर 1 1, तो 1 into 1 is 1, 1 का नेगेशन मतलब 0 हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. 1 into 0 is 0, 0 का नेगेशन क्या होगा, 1 हो जाएगा. 0 into 1, इसमें से एक सिग्नल लो है, एक सिग्नल हाई है, 1 मतलब हाई है, तो 1 into 0 is 0, 0 का क्या होगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 का नेगेशन 1 हो जाएगा. 0 into 0 is 0, उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, 0 का नेगेशन 1 हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि आउटपुट तभी 0 होगा अगर बोथ ऑन है, बोथ अगर हाई है तो आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज आउटपुट always on रहेगा. Okay, okay. So if both are on, then only output will be 0, otherwise output will be 1. Okay. तो इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट हम कैसे बना सकते हैं NAND गेट का. If both are on, then only output will be 0.
if one of them is on or both are off, then output will be 1. Okay, तो अगर मैं ऐसे लिया, पैरेलल में कनेक्ट किया, एक ऐसा एक ऐसा, लेट अस सी क्या हो रहा. ठीक है, अभी क्या है, when both are on, ये दोनों अगर ऑन है तो सर्किट इस तरह से कंप्लीट होगा, बल्ब नहीं ग्लो करेगा. ओके, इफ वन ऑफ देम इज ऑन, ये अगर ऑन है तो भी मेरा बल्ब नहीं ग्लो करेगा. इफ बोथ आर ऑफ, तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो बल्ब विल ग्लो. सो दिस इलेक्ट्रिकल एनालॉग सर्किट रिसेंबलिंग टू आवर NAND ऑपरेशन. ठीक है, अच्छा. नाउ व्हाट इज जोर गेट? जोर गेट को एक्सक्लूसिव OR बोलते हैं. हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, ये कभी कभी पूछा जाता है. सो जोर गेट एंड एक्स नॉर गेट सिलेबस में शायद नहीं है अभी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, कि इस टाइप का भी लॉजिक हमको सेटिस्फाई करना पड़ता है, जिसका डिजिटल सर्किट हमको बनाना पड़ता है. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज जोर गेट. हाउ जोर गेट इज रिप्रेजेंटेड? जोर गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे, और गेट का ही जोर है ना, जितना एक सॉर में एक्सक्लूसिव रहेगा उसमें एक ऐसा लाइन आता है. तो ये ए हो गया इनपुट, बी हो गया इनपुट. ठीक है, और जोर का एक्सप्रेशन क्या है, ए प्लस जी, ये है ए जोर बी. अच्छा, जोर गेट का क्या, कैसा आउटपुट होगा? व्हेन बोथ आर डिफरेंट, then only we get the output signal. Both are different, मतलब 1 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा, 0 1 होगा तो आउटपुट 1 होगा, और अदर केसेस में if both are same then the output will be 0. ठीक है, तो दिस इज हाउ द जोर गेट का एक्सप्रेशन. फिलहाल इतना जान के रखो. तो ऐसा भी हमको इलेक्ट्रिकल सर्किट, डिजिटल सर्किट बनाते समय, है ना, हमको इस टाइप का भी, ये ट्रांजिस्टर यूज करके इस टाइप का भी सर्किट का हमको जरूरत पड़ता है, कि व्हेन बोथ आर डिफरेंट, ओके, देन यू गिव द आउटपुट. इफ बोथ आर सेम देन द आउटपुट शुड बी लो. करेक्ट. सो दिस इज आवर जोर गेट, एक्सक्लूसिव OR गेट. अच्छा, नाउ व्हाट इज एक्स नॉर गेट? नॉर मीन्स ये है और का नॉट ऑपरेशन. अच्छा, इसी का ही एक्सक्लूसिव नॉर ना, ये हो गया और का नॉट, और का नॉट, और ये एक्सक्लूसिव है. ठीक है, तो ये हो गया और का नॉट, और का नॉट. ठीक है, तो ये कब होता है? ये तभी होगा व्हेन बोथ आर सेम. ये हो गया एक्सक्लूसिव नॉर गेट. ओके, इसमें ये के कब होगा? ये तभी होगा when both signals are same, then only you get output. Both signals are same, then there is output. 1 1 तो आउटपुट मिलेगा, 0 0 तो आउटपुट मिलेगा. Otherwise, if they are different, then output 0 होगा. So this is the function of NOR gate. ठीक है, क्लियर हो गया? So now you understood कि किस तरह से हम लोग लॉजिक गेट्स को डिजिटल सर्किट में किस सिंबल से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं. डिजिटल सर्किट में लॉजिक गेट्स का ट्रूथ टेबल क्या है, फॉर वेरियस इनपुट वैल्यूज व्हाट आर द आउटपुट वैल्यूज फॉर वेरियस कॉम्बिनेशन, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रूथ टेबल. ओके, नाउ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन के बारे में, पीएन जंक्शन इज कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सर्किट में? पीएन जंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल. ठीक है, दिस इज द सिंबल हाउ बाय व्हिच द पीएन जंक्शन इज रिप्रेजेंटेड. ये क्या होता है? सपोज मेरे पास एक जर्मेनियम का बार है, उसमें एक तरफ पी टाइप कब होता है? जब हम ट्राइवेलेंट एलिमेंट इसमें इंड्यूस करते हैं, डोपिंग करते हैं. ठीक है, तो एक तरफ ट्राइवेलेंट एलिमेंट लाइक इंडियम और एल्यूमिनियम डालो, और एक तरफ पेंटावेलेंट एलिमेंट डालो लाइक फास्फोरस. ठीक है, तो जिस तरफ मैं ट्राइवेलेंट एलिमेंट डालता हूं, एटम डालूंगा, उस तरफ क्या होगा? मेरा इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी रहेगा, तो होल्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स बनेगा. ठीक है,
इसको बोलते हैं हम पी टाइप, सेमीकंडक्टर में हम लोग स्टडी किए इसको, और इसको बोलते हैं हम एन टाइप। एन टाइप क्या है? फास्फोरस पेंटावैलेंट है, तो फास्फोरस क्या करेगा, लास्ट वैलेंस ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से 4 जर्मेनियम है सिलिकॉन के साथ, जिसका भी ये लिया सीट, ये क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का सीट लिया। ओके, तो अगर जर्मेनियम लिया तो जर्मेनियम का 4 एटम 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस के साथ कंबाइन करता, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस बच जाता, दैट कैरीज द चार्ज हियर। तो इसको बोलते हैं हम क्या, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन का 2 तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं पी टाइप को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, एन टाइप को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया, तो इसको क्या कहा जाता, फॉरवर्ड बायस। इसको क्या हो जाता, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, सपोज ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा एंड वी विल गेट करंट इन द सर्किट। अच्छा, अगर मैं एक पीएन जंक्शन को, सपोज दिस इज पीएन जंक्शन, इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किया। रिवर्स बायस में कनेक्ट करने का मतलब है पी टाइप को मैं नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया और एन टाइप को मैं पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में क्या होगा, अगर ये मान लो ये देयर होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप, तो अगर ये पॉजिटिव है तो होल्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा, सिमिलरली ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा। ओके, सो रिवर्स बायस में क्या होगा, पीएन जंक्शन ऑपरेट नहीं करेगा, करंट को फ्लो होने नहीं देगा। ओके, तो ये वाल्व जैसे काम करता है। तो जैसे हमने वाल्व सिस्टम में देखा कि जो वाल्व सिस्टम डायोड है वो रेक्टिफायर का काम करता है। सो लेट अस सी हाउ वी कैन यूज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, किस तरह से हम सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज करके हम एसी सिग्नल को रेक्टिफाई कर सकते हैं, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो क्या करेंगे हम, तो 2 तरह से हम पीएन जंक्शन यूज कर सकते हैं। एक क्या है, पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक होता है कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो पहले हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक एसी सिग्नल है, इसको मुझे एसी सिग्नल है तो इसको मुझे डीसी में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक कॉइल का प्राइमरी के साथ कनेक्ट करूंगा, ठीक है, एसी सिग्नल को, ये प्राइमरी है। ओके, और जहां पर मुझे आउटपुट चाहिए, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के साथ मैं क्या करूंगा, एक पीएन जंक्शन यहां पर एक कनेक्ट करता हूं, ठीक है, ये मेरा डायोड है। ओके, और यहां पर मेरा सपोज कोई बल्ब है जो कि लोड है, इसको क्या बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसके ऊपर मेरा आउटपुट मिलेगा, I into R इक्वल टू द आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, ये मेरा सेकेंडरी है, ये डायोड है, ये पीएन जंक्शन है। ओके, सर्किट में दिस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। नाउ अभी हाउ डायोड रेक्टिफाई द एसी सिग्नल, ये हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं मान लो कि मेरा ये एक इनपुट सिग्नल है, ये इनपुट सिग्नल है 0 t/2 t/2 2t/2 3t/2, इस तरह से द सिग्नल गोज। ये क्या है, अप्लाइड ईएमएफ, ठीक है। तो अप्लाइड ईएमएफ होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण क्या होता है, जैसे ही इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा, इसका मैग्नेटिक लाइन से फोर्स जाके इसको कट करेगा और इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब इसमें करंट फ्लो करेगा, सर्किट अगर कंप्लीट है तो। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है बेसिकली। तो अभी हम क्या देखते हैं कि सपोज एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये मेरा अप्लाइड ईएमएफ है, सिग्नल का ईएमएफ है, और अभी मुझे इधर इंड्यूस भी ईएमएफ होगा, ईएमएफ भी इंड्यूस होगा सेकेंडरी में, ठीक है। इसमें जैसे ही करंट फ्लो करेगा और चेंज होते रहेगा कंटिन्यूअसली, तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक लाइंस इसको कट करेगा, तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें भी करंट फ्लो करेगा। ओके, नाउ फ्रॉम 0 टू t/2 मान लो कि मेरा पीएन का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या होगा,
इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो सर्किट विल अलाउ करंट टू फ्लो। तो 0 से T/2 तक मुझे क्या मिलेगा, ये लोड रेजिस्टेंस जो है इसके ऊपर आउटपुट मिलेगा, ठीक है। नाउ बिटवीन T/2 टू T मेरा आउटपुट में क्या है, बिटवीन T/2 टू T ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये मेरे रिवर्स बायस में चले गया मेरे पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो ये नहीं, बिल्कुल नहीं कंडक्ट करेगा, ठीक है। फिर बिटवीन T टू 3 T/2 अगेन ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब मेरा डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, तो ये फिर से क्या देगा, आउटपुट सिग्नल देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि एक पीएन जंक्शन अगर हम सर्किट में लगाया तो हाफ ऑफ द वेव, मतलब ये जो पॉजिटिव पार्ट वाला है इसको मैं कन्वर्ट कर दिया, नेगेटिव पार्ट लॉस हो गया, लेकिन पूरा वेव में से केवल पॉजिटिव सिग्नल्स जो मुझे आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। अगर मुझे पूरा की पूरा वेव चाहिए तो मैं क्या करूंगा, और एक डायोड इधर लगा देता हूं, चलो इधर और एक डायोड लगा दिया ऐसा, इसका नाम पीएन जंक्शन डायोड 1 बोलता हूं। इसको डायोड किस लिए बोलता है, क्योंकि इट अलाउज यूनिडायरेक्शनल फ्लो, ओनली फॉरवर्ड बायसिंग में ये फ्लो को होने देता है, ओके। सो और यहाँ पे मुझे लोड रेजिस्टेंस इधर लगा दो जिसके ऊपर आउटपुट चाहिए, करेक्ट, ये मेरा लोड रेजिस्टेंस है, IR मिलेगा इधर। अभी क्या होगा, देखो दो डायोड यूज करने से ये क्या है, सेकेंडरी में अगर दो डायोड इस तरह से कनेक्ट किया तो ऑल्टरनेटली जब ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, जो पॉजिटिव होगा फॉरवर्ड बायसिंग में है वो सर्किट में करंट फ्लो को अलाउ करेगा, ओके। लेकिन ये जब नेगेटिव होगा, ये सर्किट, ये डायोड रिवर्स बायस में चले गया तो इस सर्किट में करंट नहीं फ्लो होगा, मतलब ये आउट ऑफ सर्किट हो गया। जैसे सिग्नल इसका चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का सिग्नल चेंज होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये डायोड के कौन से किस में गया, रिवर्स बायसिंग में गया, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव हो गया डायोड, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में है तो ये करंट को कंडक्ट करने में हेल्प करेगा, करेक्ट। तो इस तरह से क्या होगा, फर्स्ट सिग्नल में सपोज ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस, तो मेरा D1 जो है ना, D1 हाफ सिग्नल को रेक्टिफाई कर दिया, आउटपुट मिलेगा अगेंस्ट दिस। सेकेंड हाफ साइकिल में T/2 टू T में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये तो नहीं कम करेगा अभी, इसमें इस सर्किट में करंट नहीं फ्लो होगा, बट इस सर्किट में क्या हो जाएगा, अभी ये पॉजिटिव है तो इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। सो दिस सिग्नल, ये जो मिसिंग था हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में T/2 से T तक, ये मेरा D2 जो बल्ब है, D2 डायोड कंडक्ट करेगा। सिमिलरली थर्ड हाफ साइकिल T से 3T/2, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये फिर से फॉरवर्ड बायस होगा, ये रिवर्स बायस होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में ये डायोड कंडक्ट करने लगेगा, सो D1 विल एक्ट। सिमिलरली 3T/2 से 2T तक क्या होगा, D2 विल वर्क, करेक्ट। सो इस तरह से ऑल्टरनेटली दो डायोड अगर यूज करेंगे तो पूरा के पूरा जो इनपुट सिग्नल है उसको मैं रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल में AC को DC में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर हो गया, करेक्ट। नाउ अभी थोड़ा हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज LED। LED क्या है, LED है लाइट एमिटिंग डायोड, ओके। LED इज लाइट एमिटिंग डायोड। ये क्या होता है बेसिकली, दिस इज पीएन जंक्शन, दिस इज पीएन जंक्शन, ओके, पीएन जंक्शन। तो अगर मैं वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कैसा होता है, अगर वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, नीचे का ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा, एनर्जी गेन करके हाई एनर्जी में जंप करेगा, ठीक है। ये वैकेंट एनर्जी स्टेट यानी होल्स क्रिएट होगा इस जगह पे, और जैसे ये होल मिनिमम एनर्जी स्टेट क्रिएट होगा तो हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये जैसे ही जंप करेगा तो इसका एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी घट गया तो वो क्या करेगा, लाइट एनर्जी
एमिट करता है, ठीक है। द एनर्जी इज एमिटेड, डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है इस इलेक्ट्रॉन का इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। So it is nothing but a p-n junction. Okay. Okay. What is Zener diode? अच्छा, Zener में नॉर्मली अगर मैं एक डायोड लिया, सपोज एक डायोड को नॉर्मल डायोड लिया, ओके, Zener डायोड को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे ये सिंबल है सर्किट में, Zener डायोड इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ओके। तो नॉर्मल अगर डायोड हम लेंगे तो जैसे ही नॉर्मल डायोड को क्या करेंगे ना, रिवर्स बायस में अगर मैं कनेक्ट करता हूं सपोज, तो रिवर्स बायस में क्या कनेक्ट हो जाता है, अगर मैं अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाता हूं तो फिर क्या करंट बढ़ता है, लेकिन रिवर्स बायस में क्या होगा, जैसे नेगेटिव हो गया तो मेरा नॉर्मल डायोड कनेक्ट नहीं, मतलब कॉन्टैक्ट नहीं करता रिवर्स बायस में। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद भी अगर रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया जाए तो जेनर ने डिस्कवर किया कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद एवलांच हो जाता है। एवलांच मतलब सडनली रश ऑफ करंट फ्लो, वोल्टेज सेम रहेगा बट देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन करंट, करंट अचानक बढ़ जाता है सर्किट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेयरिंग ऑफ एंड ऑल दिस थिंग्स। इसको हम बाद में समझेंगे, बट Zener diode operates in reverse bias condition, number one, and when the current becomes very high at reverse bias, at that point of time voltage is constant. तो Zener diode को किस लिए यूज करते हैं हम, Zener diode is used as voltage regulator. Zener diode एक फिक्स्ड वोल्टेज, स्टेबिलाइज्ड वोल्टेज, स्टेबिलाईजर के जैसे कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको एक पर्टिकुलर वोल्टेज में ही ऑपरेट करते हैं। अगर ज्यादा फ्लक्चुएट होगा वोल्टेज तो ये इक्विपमेंट मेरा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो Zener डायोड क्या देता है, कांस्टेंट वोल्टेज देता है। सो इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, रेगुलेटर में यूज किया जाता है वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। जहां भी रेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई चाहिए वो यूज Zener डायोड, ठीक है। नाउ next topic is our transistor. Okay, now transistors क्या होता है, basically transistors are like एक मैंने एक जर्मेनियम का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक बार लिया, उसको मैंने क्या किया, पेंटावैलेंट एलिमेंट से हेवीली डोप किया। हेवीली डोप मैंने फॉरेन एटम्स बहुत ज्यादा डाला, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा इन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। अच्छा, ये जो है ना, दिस इज लाइटली डोप्ड एंड दिस इज मॉडरेटली डोप्ड, ठीक है। तो ये भी पेंटावैलेंट एलिमेंट से डाला तो ये भी एन टाइप हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। तो एक्चुअली एक ही बार से एनपीएन बनाया जाता है, या उल्टा भी होगा, पीएनपी बनाया जाता है, पीएनपी, या फिर ऐसे थियोरेटिकली बोलने के लिए दो पीएन जंक्शन को सैंडविच करने से एक ट्रांजिस्टर बनता है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू पीएन जंक्शन, बट बनाते समय क्या है, हेवीली डोप्ड, लाइटली डोप्ड एंड मॉडरेटली डोप्ड। डोपिंग मतलब फॉरेन एटम ऐड करके हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं। ओके, ना ट्रांजिस्टर का सिंबल सर्किट में किस तरह से हम डिनोट करते हैं, ट्रांजिस्टर को इस तरह से डिनोट किया जाता है सर्किट में। ये हो गया बेस, ये हो गया एमिटर, ये हो गया कलेक्टर। ये किस टाइप का सर ट्रांजिस्टर इंडिकेट कर रहा है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का ये सिंबल है। ओके, सो ट्रांजिस्टर में तीन एलिमेंट रहता है, एक होता है बेस, एक होगा एमिटर, एक होगा कलेक्टर। ओके, अच्छा, नाउ अगर मेरा एनपीएन मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, अगर मेरा पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो किस तरह से इंडिकेट किया जाता है, खाली ये एरो को इस तरह से डिनोट कर दो, ठीक है। तो दिस इंडिकेट्स आवर पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर में बेस का काम क्या है, ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को समझने का कोशिश करते हैं। ओके,
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, हेवीली डोप्ड, ठीक है। ये है बेस, इसमें NP होल्स आर देयर एंड ये लाइटली डोप्ड है N, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, सपोज दिस इज कॉल्ड बेस, ठीक है। अच्छा, एक ट्रांजिस्टर में ये हो गया कलेक्टर, कलेक्टर, और ये हो गया एमीटर, एमीटर। तो बेस क्या करेगा, जब भी मैं इसको ट्रांजिस्टर को सर्किट में ऑपरेट करूंगा तो बेस का काम क्या है, फ्लो को रेगुलेट करना, कितना इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू पास होगा वो करना, दैट इज द पर्पस ऑफ बेस, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, विल सी हाउ एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे, तीन टाइप का इसका, तीन तरह से एक ट्रांजिस्टर को हम ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या वो है, एक है कॉमन एमिटर मोड, कॉमन एमिटर मतलब एमिटर इज कॉमन टू बेस इनपुट, एमिटर इज कॉमन टू इनपुट सर्किट एज वेल एज आउटपुट सर्किट, ठीक है। एक होता है कॉमन बेस मोड और एक होता है कॉमन कलेक्टर मोड। तो जिसको भी इनपुट सर्किट एंड आउटपुट सर्किट दोनों में लेते हैं उसको कॉमन हो जाता है। इसमें क्या होगा, एमिटर इज कॉमन टू बोथ इनपुट सर्किट एज वेल एज आउटपुट सर्किट, इसमें बेस इज कॉमन टू बोथ एंड इसमें कलेक्टर इज कॉमन टू बोथ, ठीक है। तो ये हम थोड़ा देखेंगे अभी कि किस तरह से ट्रांजिस्टर में अगर मैं बेस करंट थोड़ा सा चेंज करता हूं तो मेरा कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, करंट एम्पलीफाई हो जाता है, ओके। तो हाउ ट्रांजिस्टर हेल्प्स अस टू एम्पलीफाई, okay. So let us see our notes now, see what are the in our semiconductor and electrical electronics we have studied last 12 years questions, and this is your syllabus actually. Energy bands in conductor, semiconductor insulators, semiconductor diode. This is what current voltage characteristic in forward biasing, okay, this we have missed, that we have to see. Then diode as a rectifier, special purpose PN junction diode like LED, photodiodes, solar cell and Zener diode, and their characteristic, Zener diode as voltage regulator. Junction transistor, transistor as a amplifier, and basic idea of digital signals like logic gates or and not NAND, ये सब। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन 2005 में आया था, ये CBSE का क्वेश्चन पेपर का स्टडी के ऊपर ये ग्राफ है। ऑन एन एवरेज 6, 5, 4, 7 इस टाइप का क्वेश्चंस आता है तुम्हारा। तो जितने भी क्वेश्चंस आया है ऑल दोस क्वेश्चंस आर आंसर्ड हियर। अच्छा, दिस इज व्हाट इज द ट्रांजिस्टर। इसको थोड़ा मैं एम्पलीफाई करके दिखाता हूँ। ये है मेरा ट्रांजिस्टर सर्किट, ये दिस इज द ट्रांजिस्टर, ओके। ट्रांजिस्टर में ये है एमिटर, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये मेरा एमिटर है, ये मेरा कलेक्टर है, ये मेरा बेस है। तो बेस में करंट भेजने के लिए हमने क्या किया, एक सोर्स, इधर एक वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है। इससे ये क्या कर रहा है, बेस में करंट भेज रहा। और बेस और एमिटर में कितना वोल्टेज है ये जानने के लिए हम ये देख सकते हैं, VBE, BE मतलब बेस एमिटर वोल्टेज, ठीक है। ये क्या हो गया, इनपुट वोल्टेज। अच्छा, इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन को, ये जिस तरह से ये ट्रांजिस्टर सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। क्यों कॉमन एमिटर, बिकॉज ये जो एमिटर है ये मेरा, ये जो इनपुट सर्किट है इसके साथ भी कॉमन है, ये जो आउटपुट सर्किट है ये देखो ना, कलेक्टर है और इधर एमिटर है, इसके साथ भी कॉमन है। इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसको कॉमन एमिटर मोड। ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन दिस सर्किट इन कॉमन एमिटर मोड। तो मेरा ये इनपुट सिग्नल है, तो मेरा ये आउटपुट सिग्नल है, करेक्ट। तो इनपुट में जैसे मैं इधर से करंट भेजूंगा तो बेस करंट जाएगा, इसमें बेस करंट थोड़ा सा भी चेंज करेंगे ना तो कलेक्टर करंट में मुझे बहुत ज्यादा चेंज नजर आएगा, ओके। इसके लिए क्या होगा, थोड़ा इनपुट सिग्नल दिया
तो आउटपुट मेरा बहुत ज्यादा होता है। ओके, क्यों होता है इसका भी लॉजिक है, व्हाई दिस हैपेंस। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसको बोलते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब अगर मेरा बेस एमिटर वोल्टेज मैं कंटिन्यूसली बढ़ाते जाऊंगा, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, ये जो करंट है ना, ये करंट भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, सो फॉर द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बेस करंट वर्सेस बेस एमिटर वोल्टेज इज प्लॉटेड। मतलब अगर मैं बेस एमिटर वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो मेरा बेस करंट बढ़ेगा। ठीक है, ये दो ग्राफ क्यों है, क्योंकि एक बार मैं कॉमन एमिटर को जीरो वोल्टेज में रखा, एक बार कॉमन एमिटर मतलब जो कलेक्टर और एमिटर का जो वोल्टेज है इसको हम मोर देन 2 वोल्ट में रखा, इसलिए दो ग्राफ प्लॉट किया। तो मैं जैसे ही बेस एमिटर का वोल्टेज को बढ़ाते जाऊंगा मेरा क्या करेगा, बेस करंट बढ़ते जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। क्यों बोला जाता, क्योंकि ये इनपुट सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक है। दिस इज ओम्स लॉ जैसे नहीं है कि वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो लिनियरली प्रोपोर्शनल होगा बेस करंट, इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, अच्छा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसको कहा जाता है, कलेक्टर करंट। आउटपुट सर्किट में क्या है, कलेक्टर है, कलेक्टर करंट वर्सेस ये जो मेरा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो वोल्टेज मैंने आउटपुट सर्किट में लिखा है वो उसका एक्स एक्सिस में प्लॉट किया गया। सो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑब्टेन्ड बाय वेरिंग द कलेक्टर करंट विथ कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को मैं जैसे जैसे चेंज करते रहूंगा, ठीक है, तो उस समय में मेरा कलेक्टर करंट कितना चेंज होगा उसका ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये देखो एक अगर मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में जैसे मैं कलेक्टर और एमिटर का वोल्टेज बढ़ाऊंगा, कलेक्टर करंट मेरा ज्यादा नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो इतने सारे ग्राफ क्यों, पहले बेस करंट 50 माइक्रो एम्पियर के लिए किया, जब बेस करंट मेरा फिक्स था 50 माइक्रो एम्पियर, तब उस समय मैं क्या किया, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, फिर उसको 100 किया बेस करंट को चेंज करके। फॉर डिफरेंट बेस करंट हमने क्या किया, एक कलेक्टर एमिटर के वोल्टेज को चेंज किया, है ना। फॉर ए फिक्स्ड बेस करंट कलेक्टर एमिटर वोल्टेज इज चेंज्ड एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ कलेक्टर करंट इज प्लॉटेड। तो ये जो ग्राफ है इसको कहते हैं क्या, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रैफिक सिग्नल में बहुत सारे एलईडी क्यों यूज किया जाता है, एक ही बल्ब से, जैसे हीलियम नियॉन बल्ब, यहाँ इनकैंडेसेंट जो बल्ब रहते हैं उससे क्यों नहीं होता है। बिकॉज एक तो जो एलईडी बल्ब है वो कम से कम एनर्जी लेता है, बहुत ज्यादा लाइट देता है हमको, करेक्ट, और बहुत सारे को अगर हम एक साथ, और उसको लाइट देने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बराबर। बट इनकैंडेसेंट लैम्प टेक सम टाइम टू वार्म अप। तो एक तो है एनर्जी का बचत होता है एलईडी यूज करने से, मल्टीपल एलईडी क्या होगा, कॉम्बाइन इफेक्ट में बहुत ज्यादा लाइट हमको देगा, इसके लिए वी यूज एलईडी बल्ब्स, मतलब मल्टीपल एलईडी बल्ब्स टू गेट मोर लाइट। ठीक है, अच्छा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वी नो, वन इज नेचुरली अकरिंग सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं हम, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, करेक्ट। अच्छा, व्हाट इज डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन क्या है कि now let us try to understand what is depletion region। ये पार्ट मिस हो रहा था। तो suppose we have a PN junction, this is positive type and this is the negative NP। तो जब हम वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, बिकॉज ऑफ द होल्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होके इधर आ जाएगा, करेक्ट, कुछ होल्स बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस तरफ जाएगा। ओके, सो ये क्या करेगा, जो फील्ड में डाल रहा हूं, बिकॉज इधर होल है इधर इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, कुछ होल्स इधर चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर हो गया। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन। और ये जो चार्ज दोनों साइड में आ गया, इसका जो करंट फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, चार्ज ड्यू टू माइनॉरिटी करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, सो डिप्लेशन रीजन
बहुत ही कम 1 मिलीमीटर एंड लेस देन 1 मिलीमीटर का ये डिप्लेशन रीजन होता है. So now we understood how it is operated. देखो अभी हम P को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो ये रिवर्स बायस हो गया. फॉरवर्ड बायस में P को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया गया. दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिप्लेशन रीजन. ओके. कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह से ट्रांजिस्टर मेरा एम्प्लीफिकेशन को हेल्प करता है. देखो ये जो RL है, RL मतलब लोड रेजिस्टेंस, आउटपुट में जो लोड दिया, लोड मतलब जिसके ऊपर में आउटपुट निकालना है. तो अगर मैंने बेस करंट को चेंज किया तो मेरा बेस एमिटर वोल्टेज, तो मेरा बेस और एमिटर के बीच का जो वोल्टेज डिवाइडेड बाय बेस करंट, इसको क्या बोलते हैं? इनपुट रेजिस्टेंस. ट्रांजिस्टर के कुछ कांस्टेंट्स पैरामीटर्स होते हैं. तो अगर हम चेंज इन बेस एमिटर वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस करंट, इसको क्या बोलते हैं? इस रेशियो को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको इनपुट रेजिस्टेंस. अच्छा, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, थोड़ा सा मैंने बेस करंट को चेंज किया तो कलेक्टर करंट में बहुत ज्यादा चेंजेस आता है. तो द रेशियो ऑफ चेंज इन द कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट एट when the collector emitter voltage is constant, तब change in collector current by change in base current, इस रेशियो को क्या बोलते हैं? करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर. ठीक है. ओके. देखो अच्छा, सो वी हैव दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. इस तरह का काफी सारे कॉम्बिनेशन दिया जाता है, बोलता है कि इसका आउटपुट क्या होगा. तो अगर ये ग्राफ देखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन का ए और हो रहा, ठीक है, इधर से एक जा रहा, ठीक है. तो इसका क्या हो गया? बाद में ए प्लस ए इधर गया, इधर से ए आया, बाद में उसका एंड हुआ, ठीक है, इधर. तो ये मेरा इनपुट में क्या पूछा? ए और ए प्लस बी. तो इसको सिग्नल में एंड करने से क्या होगा? फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ ए एंड बी प्लॉट करके देखो तो ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट निकलेगा. करेक्ट. तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का आउटपुट क्या होगा तुमको इससे पता चलेगा. ओके. सो विल डिस्कस दिस क्वेश्चंस लेटर ऑन. सो दैट्स ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. थैंक यू वेरी मच.